हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे। सो इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और द मैकेनिज्म्स ऑफ द रेगुलेशन फॉर द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. So further going with that topic only, we are today discussing the role of baroreceptors in the regulation of the cardiovascular system. So what are these baroreceptors? These are also known as mechanoreceptors. Mechanoreceptors क्या है? Which are responsive to the stretching of that particular structure. तो mechanoreceptors की तरह काम करते हैं. तो जहां जहां पे located है, if there is stretch or distension in that particular structure, there will be discharge from the baroreceptors. Baroreceptors will be stimulated. So basically, these are located in the walls of heart and the large blood vessels, and they are stimulated by the distension of structures in which they are located. ठीक है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में लोकेटेड है. तो जब भी वो ब्लड वेसल्स की वॉल स्ट्रेच होंगी ड्यू टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और ड्यू टू राइज इन द ब्लड प्रेशर, the activity of these baroreceptors will be increased. These baroreceptors will be stimulated. So what will happen after the stimulation of these baroreceptors? So these increased baroreceptor discharge leads to the inhibition of the vasoconstrictor nerves and excitation of the vagal innervation of the heart. So two things will occur when these baroreceptors will be stimulated. First of all, they will stimulate the vagus nerve. So they will stimulate the vagus nerve and will inhibit the vasoconstrictor. क्योंकि ये कब एक्टिवेट हुए हैं? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से बेरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए हैं. तो अब इन बेरोरिसेप्टर्स का काम क्या है? टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. फॉर डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर दे विल डू टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे विल इनहिबिट द वेजोकंस्ट्रिक्टर नर्व. वो नर्व जो वेजोकंस्ट्रिक्टर कंस्ट्रिक्शन करवा रही है उनको इनहिबिट करेंगे. Plus, they will stimulate the vagus activity of the heart. Vagus nerve is the parasympathetic nerve, so it will stimulate the vagus activity of the heart. तो net result हमारे पास क्या आएगा? Leading to vasodilation, क्योंकि vasoconstrictor nerves inhibit हो गई. Venodilation, bradycardia because of vagal activity, decreased cardiac output and decreased blood pressure. तो baroreceptors ने अपना काम कर दिया, उन्होंने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में ला दिया. ठीक है, तो सिंपल है. मैकेनोरिसेप्टर्स हैं. अगर इनके ब्लड वेसल वॉल में स्ट्रेच होगा, डिस्टेंशन होगा, तो ये मैकेनोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे. वॉल्स ऑफ हार्ट और लार्ज ब्लड वेसल्स में लोकेटेड होते हैं. दो काम कर रहे हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन को इनहिबिट करवा रहे हैं और वेगल एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो रहा है, वीनोडाइलेशन हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर दोनों ही हमारे डिक्रीज हो रहे हैं. Now these baroreceptors are basically supplied by the vagus nerve. जितने भी baroreceptors हैं हमारी बॉडी में वो सारे vagus nerve से सप्लाई होते हैं, except one, that is the carotid sinus, which is supplied by the carotid sinus nerve, which is the branch of ninth nerve, that is the glossopharyngeal. ठीक है, तो सारे baroreceptors vagus nerve से सप्लाई होंगे, सिवाय एक carotid sinus को छोड़ के, जो कि carotid sinus nerve से सप्लाई होता है, जो ninth nerve की ब्रांच है. Now these nerves supplying the baroreceptors, these are called as buffer nerves. तो buffer का मतलब हमें पता है, which will maintain the acid base balance, जो हम पहले पढ़े. तो कोई भी बफर का मतलब है जो एक बैलेंस को मेंटेन करके चल रहा है. सो इन नर्व्स को बफर नर्व किया जाता है, कहा जाता है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन दी बफरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर. ये ब्लड प्रेशर को बफर कर रही है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही है. नर्व सप्लाइंग द baroreceptor, therefore these are called as buffer nerves. क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द baroreceptors. तो हम baroreceptors को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. एक तो होगी इनकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, एंड द अदर वन इज द anatomical classification depending upon their location. So first of all, let's discuss about the functional classification. So these can be classified into two categories: high pressure baroreceptors and the low pressure baroreceptors. तो हाई प्रेशर baroreceptors क्या है? दे विल मॉनिटर दी आर्टीरियल सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कहाँ पे हाई प्रेशर मेंटेन कर रहा है? आर्टरीज में. तो ये आर्टीरियल सर्कुलेशन को मॉनिटर करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल, carotid sinus, baroreceptor in the wall of left ventricle and root of subclavian. तो ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं, these are the examples of high pressure baroreceptors which are monitoring the
arterial circulation. Then we have low pressure baroreceptors. These are located in the low pressure area of the circulation. ठीक है, low pressure area में located होते हैं. They are known as cardiopulmonary baroreceptors. कुछ heart में present होंगे, कुछ pulmonary arteries में present होंगे. So, for example, atrial receptors, which are located in the walls of the atrium. वहाँ पे pressure low होता है, इसलिए low pressure baroreceptors. Pulmonary receptors located in the wall of the pulmonary trunk, right? So functional classification हमने डिस्कस की. दो तरह के हैं, हाई प्रेशर baroreceptors एंड लो प्रेशर baroreceptors. हाई प्रेशर, जहाँ पे हाई प्रेशर है वहां पे मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे कि आर्टेरियल सर्कुलेशन में, और लो प्रेशर वहां प्रेजेंट है जहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, जैसे कि कार्डियोपल्मोनरी baroreceptors. Now next we come to the anatomical classification of the baroreceptors. So what is this anatomical classification? We can classify them into arterial baroreceptors and the cardiac baroreceptors. तो नाम से ही क्लियर है, arterial baroreceptors and the cardiac baroreceptors. तो arterial baroreceptors कहाँ है? Walls of the arteries में located है. Cardiac baroreceptors कहाँ पे present होंगे? Walls of the heart में present होंगे. तो very simple anatomical classification इनकी location पे depend कर रहा है. जो artery में present है वो arterial है, जो heart में present है वो cardiac. Now these arterial baroreceptors are present in the walls of the arteries and they are mainly located in the adventitious layer of the artery. तो हम पढ़ते थे ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया. तो ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया में लोकेटेड होती है. We can further classify them into systemic arterial receptors and the pulmonary arterial receptors. तो जो systemic arterial receptors हैं वो overall ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे हैं इन दी ओवरऑल बॉडी, और जो पल्मोनरी आर्टेरियल रिसेप्टर्स हैं दे आर जस्ट रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर इन दी पल्मोनरी ट्रंक. तो जो सिस्टमिक आर्टेरियल रिसेप्टर्स हैं दे आर carotid arch, located in the carotid arch, located in the aortic arch, located in the root of the subclavian artery, located at the junction of thyroid and the common carotid artery. तो चार तरह के हमारे सिस्टमिक आर्टेरियल baroreceptors हैं. कैरोटिड आर्च में लोकेटेड है, एओर्टिक आर्च में लोकेटेड है, रूट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी पे लोकेटेड है, एंड द जंक्शन ऑफ थायराइड एंड द कॉमन कैरोटिड. फिर जो पल्मोनरी आर्टेरियल रिसेप्टर है, नाम से ही पता लग रहा है, दीज आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड इट्स डिवीजन. पल्मोनरी ट्रंक और उसकी डिविजन्स में लोकेटेड होते हैं. सो दिस वाज योर आर्टेरियल baroreceptors which are located in the walls of arteries. Then we have classified into two types, systemic arterial and the pulmonary arterial. तो systemic arterial हमारा carotid arch, aortic arch, subclavian artery, junction of thyroid and common carotid artery. Pulmonary arterial, wall of pulmonary trunk and its division. Now let's come to these cardiac baroreceptors. तो नाम से पता लग गया ये कहाँ located है? The walls of the heart. हार्ट के वॉल्स में लोकेटेड है. इनको भी हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया इनटू एट्रियोकेवल रिसेप्टर्स, पल्मोनरी वीनो एट्रियल रिसेप्टर्स, एट्रियल रिसेप्टर्स एंड दी वेंट्रिकुलर रिसेप्टर्स. ठीक है, तो चार तरह के हैं, एट्रियोकेवल, पल्मोनरी वीनो एट्रियल, एट्रियल एंड दी वेंट्रिकुलर. जो एट्रियोकेवल रिसेप्टर्स हैं दीज आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेनम. So these atriocaval receptors कहाँ पे present है? Right atrium के junction पे, जो वहाँ पे वो connection बना रहा है with the superior and inferior vena. Then we have pulmonary veno-atrial receptors. These are located at the junction of pulmonary vein and the left atrium. Pulmonary vein और left atrium की junction पे located हैं. Atrial receptors, these are scattered in the walls of the atrium and interatrial receptors. ठीक है, atrial receptors कहाँ पे है? एट्रियल की वॉल्स में स्कैटर्ड है और इंटरएट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट है. जो वेंट्रिकुलर रिसेप्टर्स हैं बेसिकली हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में लोकेटेड है एंड इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. the left ventricle and the interventricular septum. So this was the anatomical classification of the baroreceptor. Now let's move forward. So in this diagram, it is shown the location of baroreceptors, basically your carotid arch, carotid sinus, and the aortic arch. So these are your carotid sinus baroreceptors. Located in the arch of aorta, these are your aortic arch baroreceptors. साथ में जो हमें दिखाया गया है this carotid body and the aortic body, these are your
कीमोरिसेप्टर्स, ये हम लेटर अभी स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आप फोकस करो बेरोरिसेप्टर्स पे। तो ये आपके एओर्टिक आर्च बेरोरिसेप्टर्स है एंड कैरोटिड साइनस बेरोरिसेप्टर। ये कौन से टाइप के हैं? ये सिस्टमिक आर्टीरियल बेरोरिसेप्टर, सिस्टमिक आर्टीरियल बेरोरिसेप्टर्स, and they are very important for the regulation of your blood pressure. आगे चलते हैं हम। तो आगे हम डिस्कस करते हैं सिस्टमिक आर्टीरियल बेरोरिसेप्टर्स। इनकी फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द रेगुलेशन ऑफ बीपी। तो दीज सिस्टमिक आर्टीरियल बेरोरिसेप्टर्स कौन से थे? फिर से रिवाइंड करो, कैरोटिड आर्च एंड एओर्टिक आर्च, ये दो तरह, ठीक है, कैरोटिड आर्च एंड द एओर्टिक। So these are sensitive to the stretch and the discharge, which is caused by rise of pressure expanding the arterial wall. तो जहाँ पे ये लोकेटेड है कैरोटिड आर्टरी के ऊपर और एओर्टा के ऊपर, अगर वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्स ऑफ दीज आर्टरीज विल बी डिस्टेंडेड, और ये हमारे जो सिस्टमिक आर्टीरियल बेरोरिसेप्टर्स हैं ये विल बी एक्टिवेटेड। अब ये कहाँ पे अफेक्ट करेंगे? दे विल अफेक्ट दी वेजोमोटर सेंटर एंड दी कार्डियक वेगल सेंटर। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर से, तो दो तरह के मेडुलरी कंट्रोल सेंटर्स के, वेजोमोटर सेंटर एंड दी कार्डियक वेगल सेंटर, तो ये उनको अफेक्ट करेंगे। अगर ये बीएमसी को स्टॉप कर देंगे तो हमारी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये सीवीसी को स्टिमुलेट कर देंगे तो हमारी पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बीएमसी ने क्या करना है? वैसे तो वो हार्ट की सारी एक्टिविटी को बढ़ाता है और सीबीसी हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। नाउ लेट अस सी कि ये बेरोरिसेप्टर कैसे काम कर रहे हैं। सो बेरोरिसेप्टर ने इन दोनों मेडुलरी सेंटर्स को अफेक्ट करना है, तो क्या करेगा? बीएमसी की इनहिबिशन करवाएगा। बीएमसी की इनहिबिशन कराएगा मतलब हार्ट की एक्टिविटीज को कम करवाएगा, और सीबीसी की स्टिमुलेशन करवाएगा मतलब वेगस नर्व को एक्टिवेट कर रहा है, तो फिर से हार्ट की एक्टिविटीज कम हो जाएगी। और ये जो बेरोरिसेप्टर्स हैं ये थ्रेशोल्ड वैल्यू पे काम करते हैं, दैट इज 60 to 200 mmHg ऑफ मीन ब्लड प्रेशर। ये बेरोरिसेप्टर्स तभी एक्टिवेट होंगे अगर मीन ब्लड प्रेशर जो है वो राइज कर गया बिटवीन 60 to 200 mmHg। So minimum value for the activation of the baroreceptor is 60 mmHg of mean blood pressure. This is known as threshold of baroreceptor reflex। और जब 200 mmHg अगर मीन ब्लड प्रेशर पहुंच जाएगा तो बेरोरिसेप्टर का जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम हो जाएगा, बेरोरिसेप्टर की जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये रेंज आपने याद रखनी है, 60 to 200 mmHg ऑफ मीन ब्लड प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो मिनिमम 60 mmHg का प्रेशर जब रेज होगा तब बेरोरिसेप्टर की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू, और 200 की उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। अब हो क्या रहा है? अगर हमारा दो सीन है हमारे पास, या तो बीपी डिक्रीज हो रहा है या फिर बीपी इंक्रीज हो रहा है। अब इन दोनों सीन में बेरोरिसेप्टर कैसे काम करते हैं? तो अगर हमारा बीपी डिक्रीज हो रहा है, मीन ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा बेरोरिसेप्टर का जो डिस्चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मीन ब्लड प्रेशर कम हो गया तो मतलब बेरोरिसेप्टर की जो एक्टिविटी है वो कम हो गई, जिसकी वजह से देयर विल बी लेस इनहिबिशन ऑफ द वेसोमोटर सेंटर एंड लेस स्टिमुलेशन ऑफ द कार्डियक वेगल। एक्टिविटी कम हो गई तो वेसोमोटर सेंटर को ये कम इनहिबिट करेगा और सीबीसी को कम स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से देयर विल बी राइज इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट बढ़ जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी या फिर वेगल एक्टिविटी कम हो जाएगी, एंड नेट रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रिवेंशन ऑफ फॉलिंग ब्लड प्रेशर। हमें क्या करना है? बीपी ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा था, हमें उस बीपी को डिक्रीज होने से आगे बचाना है। तो इसकी वजह से क्या होगा? बेरोरिसेप्टर्स अपनी एक्टिविटी को कम कर लेंगे, वेसोमोटर सेंटर को कम इनहिबिट करेंगे ताकि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब कुछ बढ़ जाए, और सीबीसी को कम स्टिमुलेट करेंगे ताकि वेगल एक्टिविटी कम हो जाए। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है और वेगल एक्टिविटी कम हो रही है। सो एज अ रिजल्ट जो फॉल इन बीपी था वो आगे के लिए प्रिवेंट हो जाएगा, देयर विल नॉट बी फर्दर फॉल इन दी ब्लड प्रेशर। अब अगर हमारा सेकंड सीन आ जाए, मीन ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है, तो क्या होगा? बेरोरिसेप्टर्स अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। सो देयर विल बी इंक्रीज डिस्चार्ज ऑफ द बेरोरिसेप्टर्स एंड देयर विल बी मोर इनहिबिशन ऑफ द वेसोमोटर सेंटर। वेसोमोटर सेंटर को ज्यादा से ज्यादा इनहिबिट करेंगे और कार्डियोवेगल सेंटर को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी है जो
कम हो जाएगी और वेगल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी एंड नेट इफेक्ट विल बी प्रिवेंशन ऑफ राइज इन ब्लड प्रेशर। बीपी ऑलरेडी बढ़ रहा था हमारा, तो हमने क्या करना था, उसके राइज को कम करना था। वो कैसे कम होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करके वेगल एक्टिविटी को बढ़ा के, तो वो होगा डायरेक्टली बाय अफेक्टिंग योर वेसोमोटर सेंटर एंड योर कार्डियक वेगल सेंटर। तो ये थी हमारी जो आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर्स है उनकी फंक्शनिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बेरो रिसेप्टर का जो रिफ्लेक्स पाथवे है वो थोड़ा सा समझते हैं। सो दीज आर योर सिस्टमिक आर्टीरियल बेरो रिसेप्टर्स, जो कि है कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च। अब यहाँ पे अगर हमारा मीन जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया, ठीक है, मीन ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एओर्टा की और कैरोटिड आर्टरी में स्ट्रेचिंग हुई, डिस्टेंशन हुई, तो हमारे कैरोटिड आर्च बेरो रिसेप्टर्स एंड एओर्टिक आर्च बेरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए, स्टिमुलेट हो गए। नाउ दे विल सेंड द एफरेंट इंपल्सेस, दोनों जगह से एफरेंट इंपल्सेस जाएगी टू योर बीएमसी एंड सीबीसी। कहां से जाएगी, 9th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व लेके जाएंगे एफरेंट इंपल्सेस। तो हमने पहले भी पढ़ा था, बाकी सारे जो बेरोरिसेप्टर्स हैं वो वेगस नर्व से सप्लाई हो रहे हैं। सिर्फ जो कैरोटिड साइनस है वो कैरोटिड साइनस नर्व से सप्लाई हो रहा है, विच इज अ ब्रांच ऑफ ग्लॉक्सोफेरेंजियल नर्व या 9th क्रेनियल। ठीक है, ये एफरेंट गए टू योर nucleus rectus solitarius which is a part of your cardiac vagal center। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस पे क्या करेंगे, ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनहिबिटरी फाइबर्स, इनहिबिटरी फाइबर्स हैं जो कि डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, इनहिबिटरी फाइबर्स दे आर डायरेक्टली मेकिंग दी कनेक्शंस विद योर सीबीसी एंड न्यूक्लियस सीबीसी, एंड डायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं, उनको इनहिबिट कर रहे हैं। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स को इनहिबिट करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारी हार्ट की जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, और ब्लड वेसल्स को जो हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर के और साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है ऑन योर दिस वेजोमोटर सेंटर विच इज डायरेक्टली अफेक्टिंग योर हार्ट बाय द वेगस नर्व, एंड वेगस नर्व की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार क्विक रिवीजन इसका करें तो हमारे जो सिस्टमिक आर्टीरियल रिसेप्टर्स हैं, एओर्टिक आर्च और कैरोटिड साइनस, वो डिस्टेंशन से एक्टिवेट हुए, स्टिमुलेट हुए, 9th और 10th क्रेनियल नर्व से एफरेंट इंपल्सेस गई। एफरेंट इंपल्सेस ने दो जगह पे काम किया, डायरेक्टली न्यूक्लियस रेक्टस सॉलिटेरियस पे पॉजिटिव इफेक्ट डाला, पॉजिटिव इफेक्ट डाला, वहां पे जो इनहिबिटरी फाइबर्स थे वो सीधा गए हमारे सिंपैथेटिक स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स पे। सिंपैथेटिक स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स ने दो जगह पे काम किया, एक तो हार्ट पे, वहां पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया, एंड ऑन दी ब्लड वेसल्स, वहां पे जो वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे थे सिंपैथेटिक मोटर न्यूरॉन्स, उसको डिक्रीज कर दिया। देन डायरेक्टली हमारे पास जो फाइबर्स आए फ्रॉम दी वेगस नर्व, inhibitory fibers आए, they will directly affect the heart, and there will be increase in the parasympathetic activity of the heart leading to fall in the blood pressure, जिससे हमारा baroreceptor reflex का पर्पस कंप्लीट होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू कार्डियक रिसेप्टर्स। अब तक हमने पढ़े थे सिस्टमिक आर्टीरियल रिसेप्टर्स, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू कार्डियक रिसेप्टर्स। तो जो ये कार्डियक रिसेप्टर्स है ये भी आगे डिफरेंट टाइप्स के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एट्रियोकेवल एंड वीनो एट्रियल रिसेप्टर्स। तो एट्रियोकेवल एंड वीनो एट्रियल रिसेप्टर्स ये भी तीन तरह के, ए टाइप, बी टाइप एंड इंटरमीडिएट टाइप। जो ए टाइप है वो डिस्चार्ज हो रहे ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, जो बी टाइप है दे आर डिस्चार्जिंग इन डायस्टोल, एंड इंटरमीडिएट टाइप है दे डिस्चार्ज बोथ ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, एट्रियोकेवल एंड पल्मोनरी वीनो एट्रियल रिसेप्टर्स हैं। ये ए टाइप, बी टाइप, इंटरमीडिएट टाइप है। ए टाइप एट्रियल सिस्टोल के वक्त काम कर रहे हैं, बी टाइप डायस्टोल के वक्त, और इंटरमीडिएट टाइप एट्रियल सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों में काम कर रहे हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वी हैव दिस ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, जिसमें क्या हो रहा है, इफ वी आर रैपिडली परफ्यूजिंग द ब्लड और द सलाइन टू द anesthetized animal, it will produces the increase in the heart rate, the initial heart rate is low। brain bridge reflex में क्या हो रहा है, अगर हम रैपिडली ब्लड या सलाइन का परफ्यूजन कर रहे एक anesthetized animal में, तो उस एनिमल की हार्ट रेट बढ़ जाएगी अगर प्रीवियस उसकी हार्ट रेट लो थी। Reason being कि atrial receptors of the both side of heart are responsible for this reflex,
It will cause the distension of pulmonary veno-atrial orifice or distension of left atrium or superior venous cava right atrial junction, which will produce the reflex tachycardia. So atriocaval और pulmonary veno-atrial की physiological significance है this brain bridge reflex. आगे चलते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ कार्डियक रिसेप्टर्स पे जो है एट्रियल रिसेप्टर्स एंड दी वेंट्रिकुलर रिसेप्टर्स. तो एट्रियल रिसेप्टर्स क्या है? ये एट्रिया में स्प्रेड है ऑल थ्रू दी एट्रियल वॉल्स एंड इंटरएट्रियल सेप्टम में. दे विल इंक्रीज द एट्रियल प्रेशर एंड इंक्रीज देयर एक्टिविटी रिजल्टिंग इन वेजोडाइलेशन. तो अगर एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे ये जो एट्रियल रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वेजोडाइलेशन करवाएंगे लीडिंग टू डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. जो वेंट्रिकुलर रिसेप्टर्स हैं ये हमने पहले भी पढ़ा, ये कहाँ पे लोकेटेड है? लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड दी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में लोकेटेड. सो जैसे ही हमारा ये स्टिमुलेट होंगे वेंट्रिकुलर रिसेप्टर इधर बाय केमिकल्स, इंजेक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग या फिर पार्शियल ऑक्लूजन ऑफ एओर्टा या कोरोनरी साइनस, तो वेंट्रिकुलर रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे. इनके एक्टिवेशन से हमारे पास एपनिया आएगा, ब्रेडिकार्डिया आएगा एंड हाइपोटेंशन आएगा. So fall in BP due to these reflex inhibition of the sympathetic discharge. जो यहाँ पे जो hypotension produce हो रही है due to activation of these ventricular receptors, which will inhibit the sympathetic discharge, is called Wissold-Zarisk reflex. Wissold-Zarisk reflex इसको बोला जाता है क्योंकि ब्रेडिकार्डिया के साथ साथ यहाँ पे हाइपोटेंशन भी हो रही है. This is known as Wissold-Zarisk reflex. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज द कॉज फॉर योर वेसोवेगल सिंपथी और इमोशनल फेंटिंग. वेसोवेगल सिंपथी या इमोशनल फेंटिंग, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, घबराहट में हो, डर जाते हो और एकदम से अगर बेहोश हो जाते हो तो उस बेहोश होने का रीजन है द एक्टिवेशन ऑफ दीज वेंट्रिकुलर रिसेप्टर्स व्हिच विल कॉज योर एपनिया, ब्रेडिकार्डिया एंड द हाइपोटेंशन व्हिच इज योर Wissold-Zarisk reflex. So this was all about your baroreceptors which are helping in the regulation of cardiovascular system. Last we have chemoreceptors. Chemoreceptors भी हमें help करते हैं थोड़ा regulation में. तो chemoreceptors क्या हैं? They are basically sensitive to the change in the blood chemistry. जो हमारे baroreceptors थे वो क्या थे? वो mechanoreceptors थे. जो chemoreceptors हैं ये blood की chemical composition में change होने पे एक्टिवेट होंगे. ये मेनली तब एक्टिवेट होंगे अगर PCO2 हमारा डिस्टर्ब हो रहा है. तो मेन फंक्शन इज टू कीप दिस एल्वियोलर PCO2 एट द नॉर्मल लेवल ऑफ 40 mm Hg एंड आल्सो टू मेंटेन द आर्टेरियल PO2, PCO2 एंड द pH. अब ये जो हमारे कीमोरिसेप्टर्स हैं ये भी आगे दो तरीके के हैं which are your carotid bodies and your aortic bodies. तो carotid bodies क्या हैं? Carotid bodies, these are located near the common carotid artery bifurcation जो हमने last diagram में देखा था, and aortic bodies, these are spread around your aortic arch. ये जो chemoreceptors हैं इनका इतना ज्यादा रोल नहीं है the regulation of the blood pressure और the cardiovascular mechanism क्योंकि ये एक नैरो रेंज में काम कर रहे हैं that is to 40 to 100 mm Hg of mean blood pressure. इसलिए ज्यादा responsible नहीं है for cardiovascular regulation. And these chemoreceptors are stimulated by your hypoxia, hypercapnia. Hypoxia, I hope you know, deficiency of oxygen. Hypercapnia, increase in the CO2 concentration. Asphyxia, that is hypoxia plus hypercapnia, and acidemia, that is fall in the pH. ठीक है, जैसे ही ये स्टिमुलेट होंगे, these will stimulate your vasomotor center and the respiratory center in the medulla. मेडुला में हमारे वेसोमोटर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे जिसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन. सो दीज आर योर कीमोरिसेप्टर्स और मेन काम है इनका PCO2 लेवल्स को नॉर्मल रखना. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर baroreceptors and chemoreceptors and their role in the cardiovascular regulation. I hope the topic is clear. If you have any doubt, you can comment me in the comment section. Till then, like, share, and subscribe my channel. Stay hydrated. Thank you so much. Bye bye. Take care.